Hello aspirants. Today in this class, that is class 2 of number system, we are going to discuss about divisibility rule. See, every year one question is asked in UPSC using this rule. So it's very important topic. चलते डिस्कस करते हैं. सी डिविजिबिलिटी रूल. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज divisibility. Divisibility is like if any number is divisible by some other number, like say if 4 is divisible by 2, it means when 4 is divided by 2, 2 2s are 4 and remainder is 0. So 4 is divisible by 2 if the remainder is 0. So अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 4 is divisible by 2. वो होता है like any numbers, like say 9 is divisible by 3 because remainder is 0. If we divide 9 by 3, say like 9 and divisible by 4, it is not divisible because remainder is not 0, remainder is 1. So 0 जो remainder 0 आता है then it is divisible. ठीक है, you got the concept. चलो rules discuss करते हैं so you get clear idea on what are these rules. See, first rule is divisible of 2. See, when we say number is divisible of 2, that means it has to have last digit as 0 or 2, 4, 6 or 8. अगर लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8, then that number is divisible by 2. Example 3756, it is divisible by 2 because last digit is 6. Another example is 20, because it is divisible by 2. If you divide 20 by 2, it's like 2 tens are 20, then remainder is 0 and last digit is 0, so divisible by 2. Like 48, last digit is 8, so last digit of a number में 0, 2, 4, 6, 8 है, so all those numbers are divisible by 2. Another example like 8, 7, 6, 5, 3, 2, 4. So again here last number is 4, so this number is divisible by 2. अगर मान ले कि नंबर दिया हुआ 8765, it is not divisible by 2 because last digit is 5 and the remainder आता है 1 आता है, so it is not divisible by 2. Then next is divisible of 3. See, in rule पे क्वेश्चन आता है, we will do questions also. You will get, see, please make notes of whatever I am telling so that you can revise it regularly. See, number is divisible by 3 when sum of all digits of number is divisible by 3. जैसे example देखते to understand it better. Like 3561, is it divisible by 2? So you don't need to divide every number, simply add 3 plus 5 plus 6 plus 1, sum of all digits क्या है? 3, 5, 6, 1, right? अगर ये sum divisible by 3 है, sum कितना आ गया? 3, 5 is like 8 plus 6, 14 plus 15 is divisible by 3. Yes, 3 5s are 15, remainder 0 आता है, like 3, 15,
5s are 15, जो रिमाइंडर 0 आता है. So sum of all digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Getting? So 3561 is divisible by 3. So then there is like, take another number 234. Is it divisible by 3? So how do you check? Sum of all digits 2 plus 3 plus 4 कितना आता है? Is 9, right? And 9 divided by 3 is 3. 9 remainder आता है, 3 3s are 9, remainder is 0. So this number is also divisible by 3. So sum of all digits is divisible by 3. Then see, like if there is a number of big numbers like 8765, and if the UPSC asks a question whether it is divisible by 3 or not, so then how do you do? It's like, one thing is to check like whether it is divisible by 3 2s are 6, 2 7, like 3 9s are 27, then आता है by 6, 3 2s are 6, then like 5, 3 1s are 3, remainder 2 है. So this number is not divisible by 3. So इतना करने की वजह से you can simply do what? 8 7 6 5, 8 plus 7 plus 6 plus 5, एक कितना आ गया? It's like 26. 8 plus 7 plus 6 5 5, and 26 is divisible by 3 or not? No, it is not divisible. मतलब remainder 0 नहीं आता है, remainder is 2. It's like 3 divided by 26, it's 8s are 24, remainder is 2. So the number is not divisible by 3. So it's like कितना भी बड़ा number हो, it's like sometimes they ask big number of 10 digits. So rather than dividing number, you just add the numbers. क्वेश्चंस भी करेंगे, यूपीएससी दिया हुआ है डिविजिबल बाई 3, ये इंपॉर्टेंट है. डिविजिबल बाई 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड. सो दिस इज डिविजिबल ऑफ 3. देन आता है थर्ड इज डिविजिबल ऑफ 4. अब 4 के लिए रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, 8728. सी here last 2 digits is 28. 28 by 4 is like 7s are 28, right? 0, remainder 0. Last 2 digits are divisible by 4, remainder 0 आ रहा है. So this number is divisible by 4. Another example is 2021216. अब बताओ, is this number divisible by 4? देखो लास्ट 2 digits है 16. 16 is divisible by 4, etc. Yes, 4 4s are 16, remainder 0. Yes, this number is divisible by 4. If you take another example like, is this number divisible by 4? No, because 61 is not divisible by 4, right? 61 नहीं आता है, so remainder 0 नहीं है, remainder is 1 for 61 से. So this number is not divisible by. So जो last जैसे बड़ा number दे दिया, like take an example of 20212121345816. UPSC asks if this number is divisible by 4. So the answer is yes, because last 2 digits are 16 and they are divisible by 4. If last 2 digits होता है
तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4। पूरा करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल ऑफ 5। इसके लिए इट इज इजी, लाइक लास्ट डिजिट 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 हो, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल like 1990, yeah, last digit is 0, this number is divisible by, and say like 2000, 20005, last digit is 5, so this number is divisible by 5। say 1994, ये divisible नहीं है because last digit is neither 0 nor 5, so easy divisible of 5 का। then आता है divisible of 6। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। डिविजिबल 6 इज व्हाट? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। बोथ 2 and 3 से डिविजिबल है, देन इट इज divisible by 6। so in order to check whether the number is divisible by 6 or not, you need to check whether a number is divisible by both 2 and 3। दोनों से divisible हो तभी होता है ना, ये 2 से हुआ तो नहीं होगा ना 3 से हुआ तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 138। अब 138 is divisible by 2 or not? Yes, because last digit is divisible by 2। It's like 2 का क्या divisibility rule है? Go here and check। last digit 0 2 4 6 8 है, तो वो number divisible by 2 है। so 138 is divisible by 2 by 2 because last digit 8 है। एंड 3 का डिविजिबल रूल क्या है? फिर जाके चेक करते हैं 3 का डिविजिबल रूल। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 है, तो वो डिविजिबल बाई 3 है। सो हियर 1 + 3 + 8 इज व्हाट? 12। 12 इज डिविजिबल बाई 3। यस, 4s are 12, रिमाइंडर 0। 3 4s are 12, राइट? रिमाइंडर आता है 0, लाइक 12 4 3 4s are 12, remainder 0। so number is divisible by 3 also। divisible by 3, so this number is divisible by 6 also, because it is divisible by both 2 and 3 से divisible हो रहा है, तो this number is divisible by 6 also। समझ में आ गया? सो टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यू नीड टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर बोथ 2 and 3 से हुआ तो इट इज डिविजिबल बाय वो। जैसे मान ले कि टेक एन एग्जांपल ऑफ 139, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। सो नॉट। अगर 2 से भी नहीं होता है, इट्स लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ 141। 141 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 से नहीं है एंड 3 से डिविजिबल है, सो बट 6 से नहीं है क्योंकि 3 से नहीं है ना, क्योंकि 2 से नहीं है। सो इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 1 + 4 + 1 = 6। 6 is divisible by 3, but 141 is not divisible by 2 because last digit 1 है, so it is not divisible by 6 also। समझ रहे हो? वो है। देन आता है divisible of 7। see
दिस इज डिफिकल्ट। सी यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो दिस कॉन्सेप्ट अगर मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, इवन इफ देर इज ए क्वेश्चन ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 7, सो ट्राई टू डू इट लास्ट, लाइक टाइम है तो करो, शुरू में मत करो, क्योंकि इट इज ए लेंथी प्रोसेस। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद डिविजिबल ऑफ 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, सो डू इट इन द एग्जाम लास्ट में, डोंट डू इट लाइक बिफोर, पहले ही कर दिया तो टाइम लगेगा इसमें। लाइक सी डिविजिबल ऑफ 7 का आई विल एक्सप्लेन विथ यूपीएससी क्वेश्चन ओनली। यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है। सी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सी अगेन इन सी सैट यू नीड टू फोकस ऑन गेटिंग 100 प्लस, नॉट लाइक कि 150 लाऊंगा 180 लाऊंगा, जरूरी नहीं है। क्वालिफाइंग है, 66 मार्क्स चाहिए, सो ट्राई टू एम फॉर 100। सो इज लाइक दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या है जो यूपीएससी ने द नंबर 3798125 P369 is divisible by 7. What is the value of digit P? ये क्वेश्चन है। इस P का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। अब ऑप्शंस दिया है 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी इज 9। सो डिविजिबल ऑफ 7 का क्या रूल होता है पहले मैं बताता हूँ। सो नंबर 3798125 P369 हियर फर्स्ट, ये क्या करना है, 3 का ग्रुप में लेना है, जाना है हमें राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना है इस डायरेक्शन में। 3 ग्रुप का एक ग्रुप का लेते हैं, इधर 1, ये अब इधर 2 बचा है तो 2 का एक ग्रुप लेते हैं। जहां तक 3 का आ जाता है 3 नंबर का ग्रुप, 3 नंबर का ग्रुप लिया, देन जितने भी नंबर बचा है लास्ट में उतने नंबर का एक ग्रुप लेंगे, ठीक है, 3 का बंडल का। देन स्टार्ट विथ प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिव में स्टार्ट विथ पॉजिटिव एंड देन मार्क ऑल्टरनेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेट्रा इसमें। सो इस अप्रोच से जाना है, लाइक राइट टू लेफ्ट, बंडल ऑफ 3 नंबर्स का बंडल एंड गिव प्लस नेगेटिव साइन ऑल्टरनेटिवली। अगर दिया इतना बड़ा नंबर इज इट डिविजिबल बाय 7 दिया है तो इसी तरीके से जाओगे। देन क्या करोगे, 369 नंबर है जो फर्स्ट वाला, उसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 5 35 1 9 एंड 7 2 14, तो रिमाइंडर इज 5। सो इसका करते, सो ईयर इधर देखो, फिर से देखो, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है ना 369 का, तो 369 का हम देखते हैं रिमाइंडर इज 5 प्लस 5। देन दूसरा पॉजिटिव वाला ले लो 971, सो दूसरा पॉजिटिव वाला है 981 डिवाइडेड बाय 7 कितना, डिवाइडेड बाय 7 में रिमाइंडर कितना आएगा, 1 7 2 8
4 जार 28, सो 0 ये 1, सो रिमाइंडर बचेगा 1, जो ये वाला 1 बचेगा। सो इसका रिमाइंडर है 1। देन सेम डू विथ 25p ऑल्सो, जो नेगेटिव आता है 25p। अब 25p कैसे लिखना है, 250 प्लस p, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 25p है, नंबर इज 250p, तो 250 प्लस इधर p क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसको ऐसा लिख सकता है। सो देन 250/7 करो, 250/7 करोगे 3 जार 21, 4 0, 5 जार 35, सो रिमाइंडर आता है 5 इसका। 40 और 5, रिमाइंडर 5 आता है। सो इधर आता है रिमाइंडर 5। देन 37 का, ये भी अगेन नेगेटिव, सो इसका रिमाइंडर आता है 2 आता है रिमाइंडर, राइट, क्योंकि 7 5 जार 35 एंड रिमाइंडर इज 2। अब क्या करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर जो भी है +5 +1 ऐड करना है, एंड नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, माइनस करना है, -p -5, और इधर p भी तो है, -p -2, इट्स लाइक +6 है, और इधर -7 -p, सो इट कम्स आउट टू बी 6 -p -7 इज इक्वल टू 0। इसको कंबाइन किया तो इक्वेशन -1 -p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है कि p 6 है, इफ p is +6 then we will get 0, right, -1 माइनस p क्या है, 6 है, तो इट इज -7, सो वी विल गेट 0, दिस नंबर p वुड बी डिविजिबल बाई 7, सो कोई रिमाइंडर 0 आना है ना, सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 6। हियर समझ में आ गया, क्योंकि -1 है, इधर 6 आएगा तो -7 आएगा p का वैल्यू, तो तभी डिविजिबल होगा, क्योंकि हियर क्वेश्चन में क्यों पूछा, इट इज डिविजिबल बाई 7, मतलब 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अब p का वैल्यू जब 6 होगा तभी इस पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 आएगा। सो आंसर है p इज इक्वल टू 6, b इज द आंसर। सो जो भी नंबर, जैसे कि यूपीएससी क्या पूछ सकती है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, इट कैन गिव एंटायर नंबर, लाइक it can give number 3 7 9 8 1 2 5 6 3 6 9 पूछ के is it divisible by 7, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्या करना है, फिर सेम मॉडल 3 3 का बंडल लेना है, और राइट टू लेफ्ट बंडल लेना है, प्लस माइनस करके सेम सबका रिमाइंडर ऐड करके, अगर वो रिमाइंडर ऐड किया हुआ वो डिविजिबल बाई 7 या -7 या +7 या 0, इन तीनों में कुछ भी आएगा, या डिविजिबल बाई 7 वाला 21 टाइप ऐसा कुछ आएगा, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। सो समझ रहे हो, सो दिस इज लेंथी प्रोसेस, दैट्स वाई आई वुड रिकमेंड यू टू लास्ट में करो, और ये एक बार पूछ लिया अगेन इतना जरूरी नहीं है। सो जस्ट यू कैन जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, क्वेश्चन हो जाए तो सही है, लास्ट में करो, नहीं भी होगा तो उधर रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में, बिकॉज इट इज टेकिंग टू मच टाइम, राइट, टू मच टू रिमेंबर, टू मच प्रोसेस, एक छोटा भी नंबर गलती किया तो सो इट्स वाई रिस्क नहीं लेना है, लास्ट में करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। देन आता है डिविजिबल बाई 8 बाई 8। अब
डिविजिबल बाई 8 का क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाई 8 है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 8 है। एग्जाम्पल क्या है, 256512 is this number divisible by 8 or not। सो क्या देखना है, सिर्फ पूरा नंबर का देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 डिजिट से लास्ट 3 512, इफ उसका रिमाइंडर आता है 0 लाइक 8 6 जार 48 एंड बचता है 3 तो 32 एंड 8 4 जार 32, सो रिमाइंडर 0 है, लास्ट 3 डिजिट, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। सो अब इधर देखो, ये एक ट्रिक है, दिस नंबर सी 2 to the power 1 is equal to 2, right? 2 to the power 2 is equal to 4, right? And 2 to the power 3 is equal to 8, 2 into, so इसके 2 to the power 1 है, इसके लिए लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2 है तो डिविजिबल है। अब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई नंबर 4 है तो डिविजिबल बाई 4 है, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है तो नंबर डिविजिबल बाई 3 है। सो इससे क्या हमें एक इंडिकेशन मिल जा रहा है फॉर एक सीक्वेंस याद आ रहा है। देखो 2 इज इक्वल टू 2 to the power 1 इज इक्वल टू लास्ट 1 डिजिट 0 या 2 या 4 या 6 या 8, मतलब लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, एंड 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2 इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 एंड 8 के 2 to the power 3, 8 is equal to what, 2 to the power 3 is 2 into 2 into 2, right? So last 3 digits है डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। देन आता है 16 इज 2 to the power 4। अगर पूछा है नंबर इज डिविजिबल बाई 16, क्या करना है, लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाई 16 होना चाहिए, 16, राइट? देन आता है 32 इज इक्वल टू 2 to the power 5। इसमें क्या, लास्ट 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 32 होना चाहिए। सो ऑन, ऐसा उसका जैसे बढ़ेगा लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, सेम, राइट? 0 2 ये ऑल आर डिविजिबल बाई 2। सो ये होता है एक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी का, सीधा पूछेगी बाई 16 इज इट नंबर डिविजिबल बाई 16। सो आपको क्या करना है, बड़ा नंबर देगा वो, लास्ट 4 डिजिट्स का अगर डिविजिबल बाई 16 है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 16। अगर मान ले बड़ा नंबर दे दिया लाइक 2 1 3 4 5 8 6 9 5 4 2, ऐसा बड़ा नंबर दे दिया, पूछा कि भाई इज इट डिविजिबल बाई 32। सो आपको क्या करना है, लास्ट 5 डिजिट्स को अगर डिविजिबल बाई 32 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 32, ऐसा करना है। सो ये सीक्वेंस, ये याद करने का तरीका भी है, लाइक 2 का लास्ट डिजिट वो, 4 का लास्ट 2 डिजिट्स, 8 का लास्ट 3 डिजिट्स, ऐसा। अगेन दिस सेम सीक्वेंस अप्लाइज फॉर 5 ऑल्सो। 5 इज इक्वल टू 5 to the power 1, लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 5 25 क्या,
5 square, last 2 digits divisible by 25. देन आता है 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ क्यूब, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125 होना चाहिए. देन आता है 625 इज 5 टू द पावर 4, लास्ट 4 डिजिट्स divisible by 625, then so on. So this is again a sequence. If UPSC asks like बड़ा नंबर दे दिया like 625 425 125 625, is it divisible by 125 दिया है. सो यू व्हाट यू नीड टू डू, लास्ट 3 डिजिट्स है वो 125 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है. अगर हो रहा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अगर नहीं हो रहा है तो सो पूरा करने की जरूरत नहीं है. गेटिंग? सो ये भी बॉक्स में नोट डाउन कर लो. सी जो भी मैं लिख रहा हूं ट्राई टू नोट इट डाउन, मेक नोट्स. ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है. सो ये हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. वी आर डन विथ डिविजिबल ऑफ 8 राइट. अभी है डिविजिबल रूल ऑफ 9. डिविजिबल बाय 9 अगेन इम्पॉर्टेंट है. क्या है? सेम 3 का जैसा ही है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 है तो वो डिविजिबल बाय 9 है. सी एग्जाम्पल 4 5 2 7 3 6 2 9 7. क्वेश्चन पूछा है भाई इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9. सी इन एग्जामिनेशन यू कैनॉट जस्ट से कि भाई एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 चेक करना इज मुश्किल, लाइक बड़ा नंबर दे दिया तो. सो व्हाट यू डू इज 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7. इसको ऐड करोगे, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 9 10, ये आ गया 45 आ गया. सो 45 is divisible by 9. Yes, 9 5s are 45, least remainder 0. So this number is divisible by 9. Another example देखते हैं. 2 1 2 1 2 1. So 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 is equal to कितना 3 plus 3 plus 3 9 है. So 9 is divisible by 9. Yes, 9 ones are 9, remainder 0. So this number is also divisible by 9. So बस नंबर ऐड करना है, जितने भी डिजिट्स है वो सब सम ऑफ ऑल डिजिट्स वो 9 टेबल में आता है तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. अगेन इंपॉर्टेंट रूल है. देन आता है 9 हो गया, आता है 10 का डिविजिबल बाय 10. तो 10 का क्या है? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. अब भाई क्या है? अब इसको कोई एक्सप्लेनेशन की लाइक 20 30 20 10 40 लास्ट में 0 आता है तो इट इज डिविजिबल बाय 10. अगर नहीं आता है तो इट इज नॉट डिविजिबल. इवन 5 भी आता है तो नॉट डिविजिबल बाय 10 राइट. सो सिंपल है. देन आता है इम्पॉर्टेंट डिविजिबल बाय 11. ठीक है. डिविजिबल बाय 11 का क्या है रूल? ऑल्टरनेटिव डिजिट
सम माइनस अदर ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम बाई 11। चलो एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। लाइक गिवन लाइक 9, 5, 7 इज इट डिविजिबल बाई 11 और नॉट। सो क्या है ऑल्टरनेटिव का सम 9 प्लस 7 माइनस दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है 5 बचा जो है 5 डिवाइडेड बाई 11। अगर है रिमाइंडर 0 आता है तो दिस इज लाइक 16 माइनस 5 divided by 11 is like 11 by 11. Yes, 0 remainder है, so this number is divisible by 11. So again दूसरा नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल 2, 5, 3, 8, 5, 6 और क्या है ऑल्टरनेटिव का सम 5 प्लस 8 प्लस 6। ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं 5 प्लस 8 प्लस 6 एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव 5 प्लस 3 इनका माइनस 5 प्लस 3 बाई 11 दैट इज लाइक 19 माइनस 8 बाई 11 राइट इज अगेन 11 बाई 11 तो रिमाइंडर 0 दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। अगेन और एग्जाम्पल देखते हैं 5, 0, 4, 8, 5, 9, 3 is it divisible by 11? तो again alternative 5, 4, 5, 5 plus 4 plus 5 plus 3 minus 0 plus 8 plus 9 8 plus 0 plus 9 alternatives by 11. So if you do it by addition 17 minus 17 by 11 that is again 0 by 11 like again remainder is 0 right, so this is divisible by मतलब जो भी रिमाइंडर 0 आता है तो वो is like 11 by 0 11 zeros are 0 so remainder 0 तो ये वो है। अब 11 by 11 में क्या है 11 ones are 11 रिमाइंडर 0 so इधर ये भी है। so ये सारे so ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम माइनस अदर ऑल्टरनेटिव डिवीजन का सम बाई 11 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, अब लास्ट है इसमें डिविजिबल रूल में डिविजिबल बाई 12। इसका क्या है डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 3। अगर नंबर है डिविजिबल बाई 4 और डिविजिबल बाई 3 से होता है तो बोथ 4 एंड 3 से होता है तो इट इज डिविजिबल बाई 12। एग्जाम्पल सी इधर 4 एंड 3 का क्या है 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज 12 राइट, सो ये ट्रिक है। एग्जाम्पल 17, 40। अब 4 के लिए कैसे डिविजिबल चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए भाई। लास्ट 2 डिजिट से 40 डिविजिबल बाई 4 है यस जर 40 रिमाइंडर 0 तो 4 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल क्या चेक करेंगे सम डिजिट्स 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0 divisible by 3 like it is 8 plus 4 is 12 divided by 4 remainder 0 yes 3 से भी divisible है so this number is divisible by 12 because it is divisible by both 4 and 3 से हो रहा है। तो समझ रहा है ये सी 12 नंबर्स तक याद करना है। सी इम्पोर्टेंट सी इफ यू गो 1 तो है नहीं 2 का वी ऑलरेडी नो बाई लास्ट डिजिट जो भी आता है वो 2 0 2 4 6 8 वो डिविजिबल है। 3 का इंपॉर्टेंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगेन
3 का सेम है 9 का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स बाई 9 आता है। फिर 4 का लास्ट 2 डिजिट्स का डिविजिबल बाई 4। 5 इज इजी, 0 और 5 लास्ट में आता है तो डिविजिबल। 6 इंपॉर्टेंट है, 2 एंड 3 से होना चाहिए। 7 का एक अलग ही रूल है। 8 का लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। ये 2 4 8 का कैसे याद करना है एंड उसका पावर रिलेटेड कैसे याद करना है वो सब डिस्कस किया। देन आता है 9 का, सेम लाइक 3। देन 10 इज इजी, 11 डिफरेंट है ऑल्टरनेटिव का, वो याद करना है। देन 12 आता है भाई 4 से और 3 से होता है तो वो है कि बिकॉज 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। दीज रूल्स मेक नोट्स एंड रिवाइज देम रेगुलरली, तो सब याद होगा। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो याद। सी इफ यू जस्ट रिमेंबर दीज रूल्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये क्यों याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है। सो सीधा चलते हैं यूपीएससी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, दिस इज आस्क्ड इन लाइक 2018 और 2019 आई थिंक, प्लीज चेक। 2019 या 2018 में यूपीएससी सीसैट में पूछा हुआ है। एंड 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर 425274 6B, ये है B। 8 डिजिट नंबर दिस लीव्स ए रिमाइंडर 0 when divided by 3. How many values of B are possible? ठीक है, ऑप्शंस है A is 2, B is 3, C is 4 and D is 6। चलो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। 8 डिजिट नंबर पूछ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लीव से रिमाइंडर 0 when divided by 3। It means what? This number is divisible by 3. How many values of B are possible? See, UPSC always asks concept oriented. It directly doesn't ask whether this number is divisible by 3 or not, what is the value of B, how many values of B are possible, ये पूछ रही है। See again divisible rule of 3 क्या है? Go, divisible rule of 3 is sum of digits divisible by 3, sum of all digits divisible by 3 है तो it is divisible by 3। so remainder, leave से remainder 0 means it is divisible by 3। so sum क्या है? 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 7 plus 4 plus 6 plus B, इसको by 3 करना है। तो ऐड किया तो कितना आएगा? इट इज 30 प्लस B by 3। सी अब लीव्स रिमाइंडर 0, सो इधर B का क्या लाइक रिमाइंडर 30 by 3, रिमाइंडर 0 होना चाहिए डिविजिबल। अब B का वैल्यू क्या 0 हो सकता है। इफ B वैल्यू इज 0 देन 30 by 3 इज लिविंग रिमाइंडर 3। देन B का वैल्यू 3 भी हो सकता है बिकॉज इट इज 33। 33 by 3 इज 11s are 33, सो रिमाइंडर 0, देन लीविंग ए रिमाइंडर 0। अब 30 का B का 0 कैसे? इट इज 30 by 3, 10s are 30, रिमाइंडर 0। एंड B का वैल्यू फिर क्या हो सकता है? प्लस 3, 6 भी हो सकता है। सो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। 36 by 3 is equal to 12s are 36, so 0। एंड 9 भी हो सकता है 39 by 3, again 13s are 39। so अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ B आर पॉसिबल? 4 वैल्यू पॉसिबल है, आंसर इज 4। सो B का मेनी ऑफ
स्टूडेंट्स माइट निग्लेक्ट कि 0 नहीं लेंगे, बट नंबर बी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इन 4 में कुछ भी हो सकता है बी का वैल्यू, बिकॉज ऑल दीज नंबर जो भी है वो डिविजिबल बाई 3 होगा जो भी रखेंगे। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, 4 वैल्यूज आर पॉसिबल। तो कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन, अब इसको ऐड करके, सो ऐसा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। देन एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2020 में पूछा है। अब क्या है क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स दिया है, ये ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब स्टेटमेंट बी दिया है, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कंक्लूजन दिया है, 1 is all number is divisible by 6। 2 दिया हुआ है, all number is divisible by 4। अब पूछा है भाई क्या कंक्लूजन, लाइक ऑप्शन देता है ओनली 1 करेक्ट, बी इज ओनली 2 करेक्ट, मतलब कंक्लूजन 2, बोथ 1 and 2 करेक्ट, डी none of the conclusions correct। सी अब क्या है, ये 2 स्टेटमेंट्स दिया है और कंक्लूजन दिया हुआ है। अब इस कंक्लूजन में क्या सही है वो पूछा है। अब चलो देखते हैं। सी वी नो दैट इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इट मीन्स इट हैज टू बी डिविजिबल बाई 2 and 3। अब दिया है कि भाई नंबर ऐसा है डिविजिबल बाई 2 भी है और डिविजिबल बाई 3 भी है। सो इज लाइक वी डायरेक्टली नो दैट इट इज डिविजिबल बाई 6, ये करेक्ट है। अब ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अब हो सकता है भाई कोई नंबर है डिविजिबल बाई 3 है बट नॉट डिविजिबल बाई 4 भी हो सकता है। तो चेक करते हैं, जैसे लाइक ऑल नंबर डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या होगा, नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो ऑन। ऑल नंबर डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन, यही है ना। अब देखो ऑल नंबर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 का क्या है, 6, 12, देखो 6, 12, 18, 24 एक्सेट्रा, यही नंबर है ना डिविजिबल बाई 6। सो ये नंबर है दोनों में होगा, लाइक इफ यू टेक एनी नंबर 18 दोनों में होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 12 है दोनों में होगा, 18 दोनों में होगा, 24 दोनों में होगा। सो ऑल नंबर डिविजिबल बाई 6 है, करेक्ट है। बट ऑल नंबर डिविजिबल बाई 4 क्या है, 4, 8, 12, 16, 20 एक्सेट्रा। बट इधर देखो अब 4 है इसमें नहीं है, अब 8 है अगेन इसमें नहीं है, 12 है दोनों में है, 16 है 3 वाले में नहीं है। सो दिस कंक्लूजन इज नॉट डेफिनाइट, मतलब ये कंक्लूजन नहीं आ सकता इन दोनों स्टेटमेंट्स में से,
क्योंकि सारे दोनों नंबर जिसमें होगा वही होगा. सो ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट वाला सही है. सो अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. इफ यू नो द रूल्स, जस्ट नंबर क्या है डिवाइड वो करना है. कंक्लूजन, इस पे कंक्लूजन नहीं आ सकता है. नंबर स्टेटमेंट बाई नंबर डिविजिबल बाई 2. बहुत नंबर है दोनों में नहीं है, जो दोनों में है वो है. सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स, these questions become very easy. सो ये है यूपीएससी का क्वेश्चन. फिर और डिस्कस करते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन है. यूपीएससी का व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k if the number 7,9,K,5,9,3,8 is divisible by 11. वैल्यू k का वैल्यू पूछ रहा है. अब देखो डिविजिबल बाई 11 का रूल क्या है रिमेंबर, या चलो जाके देखते हैं 11 का रूल. 11 का रूल ये ऑल्टरनेटिव सम डिजिट माइनस अदर ऑल्टरनेटिव डिजिट सम डिवाइडेड बाई 11. अब अप्लाई करते हैं. ऑल्टरनेटिव क्या है 7 9 k 9 8, 7 प्लस k प्लस 9 प्लस 8 माइनस अदर ऑल्टरनेटिव क्या है 9 प्लस 5 प्लस 3, 9 प्लस 5 प्लस 3. इसका क्या हो गया k प्लस 24 माइनस 17 हो गया. सो दिस इज k प्लस 7. अब k का वैल्यू कितना होने से डिविजिबल बाई वो होगा, k का 4 होगा तो ये हो जाएगा 11. लाइक 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11. सो 11 बाई 11 है एंड 1 आर 11, रिमाइंडर 0. सो k का वैल्यू कितना होता है 4 होता है. सो सम 11 होना चाहिए ना. सो k का वैल्यू है डिविजिबल बाई 11 है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए भाई सम का. सो k का वैल्यू है 4. सिंपल क्वेश्चन. अगर इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कितना इजी है. इट टेक्स लाइक हाउ मच टाइम, लाइक इट हार्डली टेक्स टाइम राइट. इट हार्डली टेक्स 30 seconds to do the question. So that's why you need to know the rules of every topic, then solve questions and focus on these easy type of questions. If you know the concept, you can get 2.5 marks in fraction of seconds. If you don't know, you will keep on struggling. So एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगेन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑन डिविजिबिलिटी रूल. क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर exactly divisible by 88. ठीक है, 4-digit नंबर डिविजिबल बाई 88. सो ऑप्शन है 9944, ऑप्शन बी 9900, ऑप्शन सी इज 9988, ऑप्शन डी है 9999. सी अब डिविजिबिलिटी ऑफ 88. अब 88 को कैसे लिख सकता है 11 into 8 लिख सकता है ना. 11 into 8 is what 88 right. So if number is both divisible by 11 and 8 से होता है तो नंबर डिविजिबल बाई 8 है. हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट नंबर चाहिए. अब देखो लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें डिविजिबल बाई, पहले 11 का चेक करते हैं.
सो 11 का क्या है, 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, है ना। अब फिर चेक करना है 8 का। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, वही है ना, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, या 2 का लास्ट डिजिट, 4 का लास्ट 2 डिजिट, 8 का लास्ट 3 डिजिट। अब 1 जार 8, 9, 2 जार 16, फिर आता है 3, 9, तो इधर रिमाइंडर आता है 32, रिमाइंडर इज 7, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉट द आंसर। फिर इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर है 9944, इसका चेक करते हैं। अब देखो ऑल्टरनेटिव नंबर क्या है, 9494, सो इट इज डिविजिबल बाई 11। अब 8 का चेक करते हैं, 8 का क्या है, लास्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8 की। अब 1 जार 8, 1 4 8, 1 जार 8 अगेन, सो 6, देन आता है 4, देन आता है 8, 8 जार 64, 8 8 जार 64, रिमाइंडर 0, सो दिस इज द आंसर, लार्जेस्ट नंबर। अब ये दोनों करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इन दोनों से ये नंबर बड़ा है एंड इट इज डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 8 के। सो ऐसा करना है। सो जैसे मान ले कि कुछ भी बड़ा नंबर आ गया, उसके मल्टीपल्स में वो करो एंड ट्राई टू सी, इज लाइक 11 8 जार 88, 11 बाई 8, दोनों से हो रहा है तो हो रहा है। जैसे हमने कैसे किया, हमने किया है 12 से लेके डिविजिबल बाई 4 एंड 3, बिकॉज 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, राइट, तो वो है। देन करते हैं फ्यू मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x such that 517x 324 is divisible by 12, divisible by 12, 1 बी ऑप्शन से 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2। अब डिविजिबल बाई 12, लीस्ट वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। अब डिविजिबल बाई 12 का हमारा रूल क्या है, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अगर डिविजिबल बाई 3 से भी है और डिविजिबल बाई 4 से है तो इट इज डिविजिबल बाई, अब 3 से चेक, पहले 4 से करते हैं। अब 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4, here last 2 digits is 24, as 24 is divisible by 4, is like 6 are 24, remainder 0, as number is divisible by 4। अब 3 का चेक करते हैं। 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, इसका कितना बाई 3, दैट इज लाइक कितना आता है पूरा ऐड करके 22 प्लस x बाई 3। अब इट इज डिविजिबल बाई 12, सो इट इज डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, राइट। सो कितना आने से इधर रिमाइंडर 0 आता है, x 2 आने से क्या होता है 24, 24 बाई 3 इज 8 जार 24,
0. सो लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्या है, 2 है. सो आंसर इज डी 2. अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा तो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा तो होगा 22 प्लस लाइक 3 टेबल में कौन सा आता है, लाइक 7 आएगा तो 29 आएगा, 29 3 टेबल में नहीं आता, और 9 आएगा तो 22 प्लस 9 इज 31, 31 है 3 टेबल में नहीं आता. अब आएगा 8, आता है 30 बाई 3 इज 10 रिमाइंडर. सो अगर मान ली लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा तो वो होगा 8 होगा, लीस्ट वैल्यू होगा 2, इधर लार्जेस्ट वैल्यू पूछा तो 8 होगा. समझ रहे हो, क्योंकि डिविजिबल बाई वो है, लाइक वो एक्चुअली क्या है, ये प्लस है, वो डिविजिबल ऑफ 3 होनी चाहिए. अगर लीस्ट वैल्यू है तो भाई लीस्ट वैल्यू क्या डाल के डिविजिबल बाई 3 होगा, अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो हाईएस्ट वैल्यू क्या डाल के वो होगा. तो दैट्स द क्वेश्चन. सो यूपीएससी आस्क कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड. अब एक और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, सी अब 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल रूल ऑफ 3, वो इसीलिए देख क्वेश्चंस देख कि 3 से कैसे आ रहा है, मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहा है. अनदर क्वेश्चन इज नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3. ये यूपीएससी क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज आस्क्ड इन 2017 और 18, ऐसा ही कुछ पूछा था, 18 या 17 में. obtained is where a and b are integers. It is given that 7a3 is exactly divisible by 3. The only positive value of b is options 2, b5, c7 and d is 8. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख डिविजिबल बाई 3, ऐसा जैसे भी डिविजिबल ऐसा कुछ आए ना तो डिविजिबिलिटी रूल याद करना है. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है, अब देखो क्या है, नंबर 136 है एडेड टू 5b7 ऐड किया, सो नंबर सम ऑब्टेन्ड इज 7a3 ऐड किया तो नंबर ऑब्टेन a एंड b आर इंटीजर्स एंड 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3. सो इसका मतलब 7 प्लस a प्लस 3 जो है इसका ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 टेबल में आना चाहिए. सो 7 प्लस 3 इज 10, इज 10 प्लस ये, अब आने के लिए क्या ये होना चाहिए 2, क्योंकि 2 होने से कितना होगा, ये 12 होगा विच इज डिविजिबल बाई 3, या तो होना चाहिए 5, उससे क्या होगा 15 होगा विच इज डिविजिबल बाई 3, या तो होना चाहिए 8 बिकॉज 18 है अगेन डिविजिबल बाई 3. सो ये का वैल्यू कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है. ठीक है, अब इधर देखो ये का वैल्यू ऐड करने से इधर 1 आएगा, 13 है, तो b का वैल्यू क्या है, इधर पूछा है b का वैल्यू ना, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b. अब b का
ये का हमने मान लिया इधर 2 डाल दिया, 2 आएगा, तो जब b 8 होगा तभी आएगा ना। b मान ले 8 है, सो 8 प्लस 3 इज 11 एंड 2 आएगा। सो अब फिर वैल्यू 7 2 3 बनेगा, बट 5 आएगा तो ये क्या, फिर ये 7 नहीं आएगा इधर, b का वैल्यू 8 ही होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि 1 3 6 5 मान ले हमने 2 डाला, 5 2 7 डाला, सो इट वोंट बी, इट्स लाइक टोटल कितना बनेगा 3 और 3 प्लस 3 6 और 663 बनेगा, बट आंसर में 7 ये 3 होना चाहिए। एंड इफ 1 3 6 और 5 7 डाल दिया, मतलब b की जगह 5 डाल दिया, तो अगेन इट वुड बी लाइक 9 होगा, 693 होगा, समझ रहे? सो b का वैल्यू होना चाहिए 80। सो जब b का वैल्यू 8 होगा तभी 7 ये 3 आएगा। सो आंसर इज b का वैल्यू 8 है। अब इधर ये का वैल्यू पूछेगा तो ये का वैल्यू आएगा 2, समझ रहे हो? सो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, सो दे आर नॉट डाइवर्जिंग फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है? फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो यू नीड टू नो द रूल्स, देन जस्ट फॉलो द रूल्स, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इसीलिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एग्जाम में आपको आदत बनना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट विथ योर कॉन्सेप्ट्स। इफ 11 डिजिट नंबर 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y is divisible by 90, then the value of 4x plus 5y is, आंसर है ए का 25 ऑप्शंस, बी का 21, सी का 25, डी है 16। सीखो 11 डिजिट नंबर is divisible by 90, value of 4x plus 5y is, 4x plus 5y का पूछ रहा है, so you need to know the value of x and value of y. so divisible by 90, 90 को आप कैसे लिखोगे, 9 into 10, so 99 into 10 लिखोगे, so number has to be divisible by 9 and 10 also. अब देखो 10 से divisible है, तो 10 का divisibility rule क्या है, last digit has to be 0, so y is equal to 0। समझ में आ गया? 10 डिविजिबल ऑफ 10 पूछ रहा है, सो 90 नंबर इज डिविजिबल बाय 90 पूछ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 90 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10 ऑल्सो, सो y इज इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू कैसे, सी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 से होना चाहिए। अब देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस y का वैल्यू है 0 बाई 9। तो अब भाई इससे कितना आएगा, इट इज़ लाइक ऐड करोगे तो आएगा 48 प्लस x बाई 9। सो अब 48 प्लस x का क्या इतना वैल्यू होना चाहिए, वो सम टोटल है वो डिविजिबल बाई 9 हो जाए। अब x क्या होने से, x 6 होने से क्या होगा 54 आएगा इधर, 54 बाई 9 लाइक 9 6 जार 54 रिमाइंडर 0।
सो x का वैल्यू है 6. सो अब क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y. 5y 4x, x का वैल्यू 6 है एंड 5y का वैल्यू 0 है. 4 6 आर 24 प्लस 0 इज इक्वल टू 24. वैल्यू इज 24. ऑप्शन ए आंसर. तो ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, जो यू नीड टू केयरफुल, लाइक कैसे डिवाइड करना है भाई. 0 लास्ट डिजिट, वो थॉट आना चाहिए कि it is divisible by 90 means it is divisible by 10 also. If it is divisible by 10 then value of y is equal to 0, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए if divisible of 10 है तो. देन फिर उधर से x का वैल्यू आएगा. सो ऐसा क्वेश्चन आता है. फिर आता है एक और क्वेश्चन, what will be remainder when the number 89653698562 347 is divided by 125. सो देखो, डिवाइडेड बाई 125, इतना बड़ा नंबर. सो यू कांट डिवाइड एंटायर नंबर बाई 125. सो 125 इज इक्वल टू कितना, 5 to the power 3. सो लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइबल बाई 125. अब लास्ट डिजिट्स क्या है, 347 डिवाइडेड बाई 125 कितना आएगा, 2 जार 250. सो द रिमाइंडर इज 97 आएगा. लाइक 50 प्लस 47 इज इक्वल टू 97. सो द रिमाइंडर इज, सो दिस इज व्हाट, वो टेबल में आई हैव टोल्ड यू राइट, दिस टेबल का एप्लीकेशन है. लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाई 125. सो आएगा, सो लास्ट 3 डिजिट्स का, सी इफ यू नो द ट्रिक यू कैन डू इट इन 30 सेकेंड्स. इफ यू डोंट नो, पूरा बैठ के 125 से डिवाइड थोड़ी करोगे उधर, सो टाइम वेस्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई यू नीड टू नो द ट्रिक्स एंड रिमेंबर. नोट्स बनाओ, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. सो फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी remainder of the number 53789876532 is divided by 16. रिमाइंडर क्या है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 16. अब 16 क्या है, 2 to the power 4. सो लास्ट 4 नंबर 6532 डिवाइडेड बाई 16 करना है. कितना आएगा, 16 4 जार 64 132. तो 132 इज लाइक 8 जार 16 8 जार 128. सो रिमाइंडर आता है 4. So the remainder is 4. So again same, उस बॉक्स का 2 to the power 4. सी ये आइडिया होना चाहिए भाई. 16 क्या है, 2 into 2 into 2 into 2. So it's important, you need to know like cubes 2 का power 5 तक, 5 to the power 5 तक, then tricks. सो ये बार बार प्रैक्टिस करने से, ये बार बार रिविजन करने से अच्छे से याद होगा. सी क्वेश्चन एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. डिविजिबिलिटी रूल से हर साल लाइक पास्ट 5 ईयर्स में
every year a question is asked. What do you need to do? You need to remember few rules and practice questions on them. Like previous year questions में खुद इतने क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ. So you need to practice more questions and आएगा क्वेश्चन आएगा, you remember the concept, then it would be a cakewalk. So that's it for today's class. I hope you enjoy the class. Notes बार बार रिविजन करो. Try to revise the notes like 5 to 6 times before the exam. सारे क्लासेस का नोट्स बनाओ अच्छे से एंड रिवाइज करना है. क्वेश्चंस भी नोट डाउन करो, रिवाइज करो. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. और टेस्ट दो दबा के. सी सैट में 100+ हैज़ टू बी ए केक वॉक. सी माई रूल इज दिस, like I don't want you to score 150 or 180 in CSAT. 100+ तो होना ही चाहिए. And it's not difficult also, it's easy, but you need to practice. See, CSAT day by day, year by year UPSC मुश्किल कर रही है. So you can't expect कि भाई मैं ऐसे ही जाऊँगा एग्ज़ाम में सॉल्व करूँगा पास हो जाऊँगा. No, it's not that easy. You need to practice, you need to solve questions, तभी होगा. See, many people like they are passed out of IIT and their optional is max, but still couldn't clear CSAT because they are not practicing. ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है. अपना कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो यार. एंड प्रैक्टिस से बिना आजकल नहीं हो रहा है CSAT. इवन इफ यू आर मैथ्स बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तब भी नहीं हो रहा है. सो यू नीड टू डू CSAT classes, watch all the classes and then practice, revise class notes, revise the questions, observe previous year questions, solve lots of tests. That's it, CSAT is done. Okay, bye.